Question number 9. A and B are two events such that probability of A is equal to 1/4, probability of B is equal to 1/2, and probability of A intersection B is equal to 1/8. Find probability of not A and not B. तो इसमें हमें क्या निकालना है? probability of not A not B. तो probability of A naught intersection B naught equal to 1 minus probability of A union B. A union B किसके बराबर होता है? probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B. तो probability of A जो है वो कितनी है? यहाँ पर 1/4 प्लस probability of B 1/2 माइनस probability of A इंटरसेक्शन B होगी 1/8. तो यहाँ LCM जो है ये 8 आ गया. तो 4 2s are 8, 2 4s are 8 and minus 1, which is equal to 6 minus 1 upon 8, which is equal to 5/8. तो अब हम निकालेंगे therefore probability of not A intersection not B, that is probability of not A and not B equal to 1 minus probability of A union B 5/8, which is equal to 8 1s are 8 minus 5 equal to 3/8. तो probability of not A not B जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है? 3/8. 10 events A and B are such that probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 7/12, and probability of not A or not B equal to 1/4. State whether A and B are independent. तो इसमें उसने हमें क्या दिया है? probability of A दिया है, probability of B भी दी है और probability of not A और not B भी दिया है. तो हमने इसमें ये बताना है कि ये जो A and B और ये जो A और B जो दो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं. तो ये दिखाने के लिए कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं हमें क्या करना है कि probability of A intersection B निकालनी है. और जब हमारे पास probability of A intersection B आ गई तो probability of A intersection B for independent events equal to probability of A into probability of B. तो उस वक्त अगर probability of A intersection B probability of B A into probability of B के बराबर हो जाती है तो A और B जो है ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. और अगर नहीं होती है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है. तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं. अब उसने हमें दिया क्या है? एक तो probability of A दिया है और दूसरा probability of B दिया है और तीसरी चीज़ हमें जो दी है वो probability of not A और not B दी है. अब probability of not A और not B किसके बराबर होती है? 1 माइनस probability of A intersection B. तो यहाँ से हम probability of A intersection B निकालेंगे. तो probability of A not union B not हमारे पास आ गया 1/4 इक्वल टू 1 माइनस probability of A intersection B. और अब ये इस तरफ आ जाएगा probability of A intersection B इक्वल टू 1 माइनस 1/4 which is equal to 4. LCM आ गया 4 minus 1 which is equal to 3/4. तो probability of A intersection B जो है ये हमारे पास कितनी आ गई?
3/4। तो अब हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 7/12। तो ये हो गया 7/24 फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। तो यहां पर probability of A intersection कितनी है 3/4 is equal to 7/24। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में बराबर नहीं है, तो therefore probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B. Hence, A and B are not independent events. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6। फाइंड पार्ट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, part second probability of A and not B, part third probability of A or B, part fourth probability of neither A nor B। तो उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दो इवेंट्स दी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है 0.6। तो हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में probability of A and B, that is probability of A intersection B। तो probability of A intersection B किसके बराबर होती है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों, probability of A into probability of B which is equal to probability of A कितनी है 0.3 into 0.6 which is equal to 3/10 into 6/10 which is equal to 18/100 and which is equal to 0.18। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर होता है। तो अगर आप सेट थ्योरी में देखेंगे तो दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो ए नॉट बी क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होगा कि जो बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट होगा, वो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट होगा। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.18 विच इज इक्वल टू 3/100 माइनस 18/100 3.10 सॉरी 3.10
माइनस 18/100 विच इज इक्वल टू 100 एलसीएम आ गया तो 10 3s are 30 माइनस 18 तो ये हो गया 12/100 विच इज इक्वल टू 0.12। उसके बाद है सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड पार्ट हमने कर दिया। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? देखिए 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.18। तो ये हो गया हमारे पास 3/10 प्लस 6/10 माइनस 18/100। तो हम ये ले लेंगे एलसीएम 100 तो ये आ गया 30 प्लस 60 माइनस 18 तो ये हो गया 90 माइनस 18/100। तो कितना हो गया ये? 72/100 विच इज इक्वल टू 0.72। और फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए, आगे क्या है? नाइदर ए नॉर बी। तो ये किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो हमारे पास जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस, इधर लिख देते विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू, अगर हम इनको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, 1 माइनस 3/10 1 माइनस 6/10। तो ये हो गया हमारे पास 10 माइनस 3/10 और दूसरा हो गया 10 माइनस 6/10। तो विच इज इक्वल टू 7/10 इंटू 4/10 विच इज इक्वल टू 28/100 विच इज इक्वल टू 0.28। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी इज इक्वल टू 0.28। 12 a die is tossed thrice, find the probability of getting an odd number at least once। एक डाई को 3 बार टॉस किया जाता है तो ऑड नंबर लेने की
एटलीस्ट वंस ऑड नंबर लेने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सैंपल स्पेस when a die is tossed once, जब वन टाइम लिख दो एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एन एस हो गया हमारे पास 6। अब क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, लेट A is the event of getting odd number। हम ले लेते हैं कि A जो इवेंट है वो क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर है। तो A किसके बराबर हो गया, 1 3 एंड 5। तो एन ए कितना हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है गेटिंग एन ऑड नंबर जो है वो कितनी होगी 1/2। तो लेट B is the event of getting even। तो B किसके बराबर हो, इवन नंबर का 2 4 और 6। तो एन बी कितना हो गया 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/6 इक्वल टू 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज आल्सो 1/2। अब क्वेश्चन क्या है कि ये डाई को 3 बार टॉस करता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन थ्रू ऑफ ए डाई 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग odd number on a die on a throw of on a die, a throw of probability of getting an odd number on throw of a die, on throw of a die, throw of a die 3 times is equal to probability of getting even number on row of a die 3 times। इसका कहने का मतलब ये हुआ
कि जितनी प्रोबेबिलिटी 3 बार आड नंबर को थ्रो करने की होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी 3 बार डाई को टॉस करने की इवन नंबर की होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting even number on throw of a die 3 times equal to, पहली बार करेंगे 1/2 होगी, दूसरी बार करेंगे 1/2 होगी और तीसरी बार करेंगे फिर 1/2 होगी। तो ये टोटल होगी 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an odd number at least once equal to total probability 1 minus 1/8, which is equal to 8 ones are 8 minus 1 equal to 7/8। तो probability of getting an odd number at least once क्या होगा 7/8।